بہت شکریہ سر. ایک تو یہ شکریہ کہنے والی میرے خیال میں بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ درد تکلیف ہے، جس میں ہم سارے جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین بھی آنے والے تھے اور ان کو بھی راستے میں روکا گیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ کوئٹہ سے یہاں تک آئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے، ان فیملیز کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. اور اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے 2-4 باتیں اسپیکر پہ ادھر کے آڈینس سے بھی بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید بالاچ بلوچی وارثاں تربت شہر سنگتاں منیمات گوارا مروچی شمدیمہ گپ جنگا نئے لگیں. یہ ریاست و ریاستی ادارہ آئے روز یہ بڑے کارکنہ مشمع کی اجازت لوٹی کہ منی گساو جدگالی ابر بھی منا اجازت نہیں کہ میں اردو گپ بجنی تاکہ منی یہ پارٹی سنگت بھی سمجھا، پشتون براس بھی سمجھے گا کہ میں چے بہوشی. دوستو، آج آپ کے پاس یہ عوامی نیشنل پارٹی کا ڈیلیگیشن جو کہ ایک صوبائی ڈیلیگیشن ہے، آپ کے پاس آنے کا مقصد کہ یہ شہید بالاچ بلوچ کا درد آپ کا درد نہیں، یہ فیک انکاؤنٹرز میں بلوچ نوجوانوں کی شہادتیں یہ صرف آپ کا درد نہیں بلکہ تمام مظلوم قومیتوں کا درد ہے، تمام مظلوم قومیتوں کی تکلیف ہے. اور یہ پشتون قوم کے ساتھی عوامی نیشنل پارٹی کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آنے کا مقصد آپ کے غم میں شریک ہونا ہے. دوستو، ریاست پاکستان میں صرف آپ غمزدہ نہیں بلکہ اس ریاست میں رہنے والی تمام مظلوم اقوام غمزدہ ہیں، اور یہ مظلوم اقوام اس ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے، اور یہ غمزدہ اس ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے ہیں. آپ کے دھرنے کو 12 سے 13 دن ہونے کو ہے. ایک دوسرا دھرنا چمن میں جس کو 48واں دن ہے آج، وہ بھی اس مظلوم قوم کے روزگار کے لیے، اس مظلوم قوم کے ساتھ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے لگایا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد اس وقت ان ریاستی پالیسیوں اور فیک انکاؤنٹرز کی وجہ سے سندھی اپنی جگہ پریشان، سرائکی اپنی جگہ پریشان، بلوچ اپنی سرزمین پر پریشان، پشتون اپنے علاقے اپنی سرزمین میں پریشان. صرف اگر کوئی خوش ہے تو وہ تخت لاہور ہے یا تخت پنڈی ہے، گیٹ نمبر 4 ہے، وہ خوش ہے. تو میرے دوستو، یہ سب ہماری آپس میں نا اتفاقی کی وجہ ہے. اگر ہم باہم متحد ہو جائیں اسی نیشنلزم جس کی بنیاد پر ہم سب اکٹھے تھے، نیب کے دور کی اگر ہم یاد کو تازہ کریں، ہم سب یکجا ہو جائیں، آپ کے درد کو میں اپنا درد سمجھوں، میرے درد کو آپ اپنا درد سمجھیں، چمن میں ہونے والی تکلیف کو تربت کا شہری اپنی تکلیف سمجھے، اور تربت میں ہونے والے مظالم کو چمن کا، خیبر پختونخوا کا، ڈیرہ غازی خان کا اور سندھ کا شہری اپنی تکلیف سمجھے اور ایک ہو جائیں تو یقیناً یہ تخت لاہور پر
ہم جو ہے بہت زبردست قسم کا جواب دے سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہم آج کوئی سیاسی پروگرام میں نہیں آئے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کے غم کو اپنا غم تصور کرنے آئے ہیں، آپ کے غموں کے ساتھ ہمارا بھی غم ہے۔ ہم عوامی نیشنل پارٹی نے ہب میں بھی آپ کے کئی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کئی پروگراموں میں شرکت کر کے اپنا موقف پیش کیا، اور آج ہم بھی اپنی صوبائی قیادت کے ساتھ اپنے پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ تو جم جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ 14 دنوں میں یہ وہی خون ہے بلوچ کا جو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے بہایا گیا۔ آج وہ خون رنگ لا رہا ہے، اور یہ اس خون کی آواز ہے کہ کیچ میں ایک ان کی مسخ شدہ لاش پھینکنا، اور اس کے بعد CTT بنا کر فیک انکاؤنٹر کے نام پر لوگوں کو شہید کرنا۔ یقیناً یہاں پر کیچ کے ساتھیوں نے مل کر جس تحریک کا آغاز کیا ہے، اس کو اب پورے بلوچستان میں پھیل جانا چاہیے۔ یہ لانگ مارچ کی حکمت عملی اسی کا حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام ہر چھپے پر تو ہم اپنی لوگوں کی حفاظت کرنے جانتے ہیں۔ ہم ہر مرحلے پہ مزاحمت کریں گے، کیونکہ مزاحمت ہی زندگی ہے، اور مزاحمت کے بغیر موت ہے۔ اور جو موت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے نوجوانوں کو بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور مسنگ کیا گیا، مسلسل مسنگ کیا جا رہا ہے، یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور جب تک یہ ایشو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تب تک یہاں پر نہ امن ہو سکتا ہے، نہ سکون جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیں۔ یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کی تحریک نہیں ہے، یہ بلوچ قوم کی تحریک ہے، اور بلوچ قوم کو ہم آواز ہو کر دوسری بھی جو یہاں پر اس ملک میں رہنے والی قومتی ہیں ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا چاہیے۔ ہم جو بھی ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ بھرپور حمایت و سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم اس وقت تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا آخری مسنگ پرسن ہمارے گھروں میں واپس نہیں آتا، ہمارے گھروں میں ہماری مسنگ پرسن فیملی کو ان کی خوشیاں نہیں ملتی۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور میں آج کے اس اجتماع میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن کے نومنتخب چیئرمین اسد بٹ صاحب بھی آج یہاں پر آنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ ہم یہاں سے اب مارچ کر رہے ہیں تو پھر ان کا پروگرام فی الحال انہوں نے ملتوی کیا ہے، تو وہ کوئٹہ میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ یقیناً اس قسم کے ادارے، ہیومن رائٹس کے ادارے، سیاسی پارٹیاں اور ان کا اتحاد اور ان کی یکجہتی ہمارے لیے ایندھن کا کام کرے گی۔ ہم سب کو مل کر اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ اب چونکہ حال ہمارا ٹائم تھا 12 بجے کا، ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے کیونکہ ڈیلیگیشن آ گیا تھا عوامی پارٹی کا، تو ان کی وجہ سے ہم ان کو سننا چاہتے تھے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں اور تمام ماں بہنوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں تاکہ یہ تحریک جو ہے اپنی کامیابی کی طرف جانب ہو۔ بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا کہ جو اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدا شہید چوک پر اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام اس
दर्दनाक वाक़े में शरीक, तुर्बत के गयूर अवाम, सियासी और पॉलिटिकल वर्कर, बलोच कौम के और मेरे बहादुर बहनों, मायों, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सबसे पहले तो मैं अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से शहीद बालाच बलोच को और इसी तरह तमाम बलूचिस्तान के शहीदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने इस सरजमीन की खातिर, अपने अवाम और इस धरती की खातिर जाम शहादत नोश किया। दोस्तों और बहनों, मुझसे पहले हमारे दोस्तों ने बातें की। हम दरअसल अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से अपने मरकजी मशर, पार्टी के मरकजी सदर असफनियार वली खान और सूबाई सदर असगर खान अचकजई के हिदायत पर यहाँ हाजिर हुए हैं। ये वक्त लेकर एक चीज पर मैं माजरत चाहता हूँ कि हमें पहल जल्दी पहुंचना था। इस पर तमाम बहनों से और मिसिंग पर्सन के जो यहाँ बहनें और भाई बैठे हुए हैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ। हमारा आने का मतलब आप दोस्तों के साथ, अपनी मायों और बहनों के साथ सिर्फ लफाजी एकजहती नहीं करना है, बल्कि हम अमली तौर कह रहे हैं आपका दर्द, आपका मसला, हम भी इसी तरह पद से गुजरे हैं, हमें एहसास है। हम तमाम पॉलिटिकल कारकुनों के साथ, किसी के भाई को शहीद किया गया है, किसी के रिश्तेदार को, हमने भी इसी तरह, और ये कब तक रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुज़श्ता साल भी हम अवामी नेशनल पार्टी का वक्त, मशकूर भाई इधर बैठे हुए हैं, उसको पता है हमने 2-3 दिन इधर गुजारे थे। शहीद आयात बलोच का जब वाक़या हुआ था, उस दर्दनाक वाक़े में जब उनकी माँ और उनका वालिद, उनके गोद से वो बच्चा छीना गया था और उसके सामने उसको बड़े बेदर्दी से जो है शहीद किया गया था, भी हम हाजिर हुए थे। आज भी और इसी तरह जिस चौक पे हम आज खड़े हैं, शहीद फिदा बलोच, ये 1981 में हमारे साथ क्वेटा और मत जेल में हम जो है कैद थे। हम एक जगह, बलोच और पश्तून एक जगह, हम एक स्कूल ऑफ थॉट के सियासत के वारिस हैं। फख्र अफगान बादशाह खान से लेकर फिर खान अब्दुल वली खान, फिर मीर गौस बख्श बिजंजो, अताउल्लाह मिंगल, खैर बख्श मरी, ये जो हमारे सारे अकाबिरीन हैं, हमारा स्कूल ऑफ थॉट एक है, हम एक नजर के मालिक हैं। हम कह रहे हैं जिस तरह पश्तून गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका जबान गुलाम है, उसके कौम और गुलाम है और उसके वसाइल लुटे जा रहे हैं। इसी तरह बलोच हमसे दरपदर हैं, बलोच भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस हवाले से हम कह रहे हैं कि हम और आपका सियासी सफर एक है, हमारा दर्द एक है।
तारीख में अगर हम देखें, जब बलोच और पश्तून एक थे, जब मुतहद थे, तो हमारे और आपके धरती पर इस तरह अमल या इस तरह दहशतगर्दी या जालिम या साम्राज्य इस तरह जो है वार नहीं करता था। जब हम तकसीम हुए, जब हम में दूरियां पड़ गई, जब हम आपस में बट गए, तो हमको पश्तूनों को अपनी जगह जेर किया गया और बलोचों को अपनी जगह जेर किया गया। आज आपको एक नाम से कत्ल किया जा रहा है, ये पूरा सरजमीन को कत्लगाह बनाया गया है। हम रास्ते में आ रहे थे, जगह जगह छावनियां, जगह जगह चेक पोस्ट। क्या ये पुलिस स्टेट है? यहाँ तो सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पुरअमन लोग का कौन है और यहाँ जराम पेशा लोग कौन है, और हर जराम पेशा लोग के पास उस अपराध के साथ उन लोगों का कार्ड होएगा और वो जो है ये सारी बदमाशियां इस सरजमीन या इस धरती पे वो जो है करते हैं। पश्तूनों को इंतिया पसंदी के नाम पर, तालिबानाइजेशन के नाम पर, दहशतगर्दी इंतिया पसंदी के नाम पर हमें मारा गया है और इसको बल्कि पूरे पाकिस्तान को कैद खाने में तब्दील किया गया है। आप देखें मेरी माएं, बहनें और दोस्तों, आज जो आफत हमारे इस सरजमीन पे आई हुई है, मुझे बड़ी अफसोस की बात है। बालाच साहब की बयान या माँ या यहाँ हम जो देख रहे हैं मिसिंग पर्सन, कसम से मुझे रोना जो आता है कि एक माँ, एक बहन अपने बच्चों के लिए जो है तरस रही है। और शर्मनाक बात यह है कि ये सालों साल से जो सिलसिला चल रहा है, ये मिसिंग पर्सन का ये एक साजिश के तहत कि यहाँ पर नौजवानों को जो अपने वतन की, अपने बका की जो है बात करते हैं, उसको उठाकर उनकी मुसख लाश को पश्तून एरिया में फेंक दें और उसको ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि ये सिलसिला पश्तूनों ने जो है आपके खिलाफ किया है। और इसी तरह हमारे इलाके के वो जो अपराध हैं वो आपके इलाके में इसी तरह जो है उनको फेंका जा रहा है। ये इसलिए कोशिश की जा रही है कि हमको एक दूसरे से दूर किया जाए। कब तक बलूचिस्तान पर ये फौजी ऑपरेशन शुरू होंगे? कब तक ये फौजी हमारे इलाके में इसी तरह जो है मुदाखलत करते रहेंगे? हमें अयूबी अमरियत याद आ रहा है कि जब नौरोज खान को पहाड़ों से कुरान के नाम पर उतारा गया और उसको ये कह दिया गया कि आप अपनी धरती की जो बात कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने जिस तरीके से जो है शहीद किया गया, इसी तरह शहीद वतन नवाब अकबर बुगटी को इन्होंने फौजकशी करके उसका जो है जिस तरह जो है कत्ल किया गया। और ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है कि बलोच वतन में जो वसाइल हैं, कि बलोच वतन में जो साइल और वसाइल की बात चल रही है, इस पर इनका कब्जा किया जाए और हम और आप, हमारी माएं, हमारी बहनें वो एक गुलाम कौम की तरह जिंदगी बसर करें। मुझे ज्यादा आज जिस तरह डरना
यहाँ तुर्बत के इस चौक पे हम देख रहे हैं। इसी तरह धरना आज चमन में भी वो लोग रोजगार के लिए जो है वो चमन के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वहां भी धरना इसलिए जारी है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने बच्चों का माशी कत्ल नहीं चाहिए। ये कब तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा? सबसे शर्मनाक बात ये है मेरे भाइयों और बहनों कि कुछ दिन पहले तख्ते लाहौर वाले कोयटा आए थे, उन्होंने एक मंडी लगाई थी कि हमारे पार्टी में आ जाओ, और एक उनका तुर्बत के धरने से यहाँ पर जो नौजवानों को, जो यहाँ पर मिसिंग पर्सन को जो मसला दरपेश है, उनका उनसे कोई सरोकार नहीं है। उनको हमारे बहादुर माँ और बहनों को और उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ इक़्तिदार की नशे में लगे हुए हैं। इसी तरह लौकाने वाले भी कोई वक्त न कोई बंदा उसका यहाँ हाजिर हुआ कि हम यहाँ के मजलूम बलोच बहादुर आवाम से एकजुटती का इज़हार करें। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार की फिक्र है। कल मैं सुन रहा था यहाँ पर मौलाना साहब ने कहा कि हमारे लिए इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जाए। ये किन से कह रहे हैं कि हमारे लिए? उनको ये पता नहीं है कि हमारे बहादुर अवाम, हमारे बलोच भाई, हमारे पश्तून भाई तुर्बत के चौकों पर काफी अरसे से बैठे हुए हैं। मैं आपके अज़म को, अपनी बहनों के अज़म को, उनके वलवले को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। अगर हमारी तहरीकों में हमारी माएँ और बहनें हमारे साथ इसी तरह दे दें, हम एक शेती, हम भाई वाली, हम इत्तेहाद का मुजाहिरा कर दें, तो कोई इस तरह का बंदा नहीं होगा, कोई इस तरह का इज्तिमाई कुव्वत नहीं होगा कि वो हमारी इस्तेसाल कर सके। आज बड़ी अफसोस की बात है, मैं इन बहनों के हाथों में उन नौजवानों की तस्वीर देख रहा हूँ, कसम से मेरा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि हमारे प्यारे, जो हमारे बहनों और हमारे माँओं के जो बेटे हैं, भाई हैं, वो अभी तक लापता हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान हमारी आवाजें, हमारी माँओं की आवाजें वो जो है नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी माएँ और मेरे भाइयों, तुर्बत के आवाम बहुत बाशऊर लोग हैं। तुर्बत के आवाम, जब मैं स्टूडेंट था उस जमाने में भी हमने अमीद शहीद जो उनको तख्तादार पे चढ़ा रहे थे, उसके खिलाफ हमने पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस की तरफ से एक लंबी और तवील जदोजहद की थी, और हम भी उसी तरह उनके साथ जेल में बंद थे। हम सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ के बलोच अवाम, हमारी माएँ, हमारा और आपका दुश्मन एक है, हमारा और आपका दोस्त एक है, हमारा और आपका दर्द एक है, हमारा और आपका मुश्किल एक है। हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपको ये यकीनदानी के लिए ये सिर्फ तुर्बत का मसला नहीं है, न सिर्फ ये तुर्बत के माँ और बहनों का मसला है, ये हमारा मसला है, ये सब आवाम का मसला है। क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ और सिर्फ पश्तूनों की सियासत पे यकीन नहीं रखती है। अवामी नेशनल पार्टी तमाम महकूम आवाम,
तमाम कौमों, बलोच, सिंधी, पश्तून, सराकी, इन तमाम का गुलदस्ता है। ये तमाम कौमों की नुमाइंदगी करती है और इसमें, इस गुलदस्ते में हर फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है। इसलिए जब भी फख्र अफ़गान बादशाह खान और हमारा नजरिया है कि हम मजहब, कौम इससे बालातर होकर हम सिर्फ और सिर्फ मजलूम की हिमायत करते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। बलोच तो हमारे अपने सूबे बल्कि अपने सरजमीन और अपनी धरती से ताल्लुक रखते हैं। उनका दर्द हमारा अपना दर्द है। हम कह रहे हैं कि हमारी माएं मिसिंग पर्सन की वो ये महसूस न करें कि वो अकेले हैं। हम यकीन दिलाते हैं हमारी पार्टी की जानिब से, अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी रहबरी की तरफ से, सूबाई रहबरी की तरफ से, उनके रहनुमाओं बल्कि एक एक कारकुन की तरफ से ये आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपका धरना वहाँ क्वेटा शिफ्ट हुआ, हमने सुना है कि इस तरह जो है, अगर वहाँ आ गए तो अवामी नेशनल पार्टी जिस तरह तुरबत हाजिर हुई है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वहाँ अवामी नेशनल पार्टी शाना बशाना आपके साथ रहेगी। हम किसी भी मुश्किल में हर वक्त, मैंने जो ये 2-3-4 वाक़े याद दिलाए कि हम हर वाक़े में अमलन आपके साथ आए हैं, अमलन आपके साथ शरीक हुए हैं। अवामी नेशनल पार्टी तमाम कौमों, तमाम मजलूम आवाम की नुमाइंदा जमात है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, मैं तमाम बहनों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जो हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी की वफ्द आई हुए है, मेरे साथ है मलक मेराब काकड़, सनाउल्लाह काकड़, वलीदाद म्यानई और वलीदाद अनवर मंदोखेल, वलीदाद म्यानई और हमारे जिला हब के सदर मनान लाला मनान अफ़गान, इन तमाम की तरफ से बल्कि तमाम आवाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी हमारी जुमात नहीं है, बल्कि ये जितना हक हम रखते हैं अवामी नेशनल पार्टी पर, इतना ही हक आपका होएगा। मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, वो ये है, एक ही रिक्वेस्ट, वो ये है, मैंने पहले ही बात की, जब हम तकसीम थे तो दुश्मन हम पर हमलावर थे। इसका एक ही हल है, वो हम कह रहे हैं, जिस तरह नेब की तर्ज पर, नेशनल अवामी पार्टी की तर्ज पर, जिसमें खान अब्दुल वली खान रहबर तहरीक वो मौजूद थे, जिसमें नवाब खैर बख्श मरी मौजूद थे, जिसमें अताउल्लाह मेंगल, जिसमें बाबा बलोचिस्तान मीर गौस बख्श बिजंजो थे, इसी तरह एक प्लेटफार्म हमारे दरमियान होनी चाहिए। अगर हम एक प्लेटफार्म पर जो है नहीं आ सकते हैं, एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम एक नुक्ते पर कि हमने सिर्फ अपने आवाम की सर्व माल की हिफाजत करनी चाहिए। चाहे तुरबत में किसी के साथ कोई वाक़या होता है तो हमने पशीन में आवाज बुलंद करनी है। अगर पशीन में किसी के साथ वाक़या होता है तो हमने पसमी, ग्वादर और खुजदार में आवाज बुलंद करना है। एक ही नुक्ते पे तो हम इकट्ठा हो सकते हैं। मैं यही तौक़ात के साथ डॉक्टर मालिक साहब के साथ हमारे काबिल नज़दीकी ताल्लुकात हैं, सियासी हवाले से भी, अख्तर मेंगल साहब से भी, दूसरे जो सियासी अकाबिरीन हैं,
तमाम हमारे लिए मोहतरम है। हमारी तरफ से ये है अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से कि हम कम से कम नुकात पे पार्टी हर किसी का मुबारक हो, झंडा हर किसी का मुबारक हो। हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही नुक्ते पे कि यहाँ हम आवाम की सर माल की हिफाजत के लिए किस तरह जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने मिसिंग पर्सन को जो यहाँ मावरा अदालत जो है जो यहाँ कत्लगा बना हुआ है उसको किस तरह जो है अपने बच्चों को, अपने माओं को, अपनी सरजमीन को, अपनी धरती को किस तरह बचा सकते हैं, इस पर बैठना होगा। हमने इत्याद का मुजाहरा करना होगा। आप तमाम बहनों का, आप तमाम माओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और बलोच एकजेटी कमेटी का मशकूर हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी और हमको चंद अल्फाज का मौका फराहम किया। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।